please mute themselves. And when the before the Q&A sessions, those who have any kind of queries, I would like them to comment their names in the chat box. So, CEO of Amazon, Jeff Bezos, once said, "It's hard to find things that won't sell online." With how accessible the internet is today, would you believe me if I told you the number of people who go online every day is still increasing? It is, in fact, constant internet usage among adults increased by 5% in just last 3 years. At this stage, digital marketing is vital for your business and brand awareness. It seems like every other brand has a website, a digital ad strategy, or a social media presence. Long story short, to be competitive in this world, you will need to embrace some aspects of digital marketing. We at Edumentis provide all advanced technical skill development courses in India and around the world. We have grown to a full-fledged curriculum development center in recent years. Edumentis has gained a reputation for providing high-quality education in friendly and supportive environment at an affordable price. Today's workshop on digital marketing on its way to build you wealthy, the largest conundrum, is one of our constant efforts to carry it forward. So without causing further delay, I would like to introduce you to our first speaker, Mr. Nilesh Komatwar, a multifaceted, is a talented serial entrepreneur with a strong sense of influence of digital marketing. He is the founder, director of Neil Digital Enterprises Private Limited, a certified trainer from Maharashtra government and chatbot expert. Nilesh started taking interest in digital marketing in his college and carved a niche for himself in the domain. He is known across marketing community for his strong motivational skills. He is known to charm his peers with his aura of confidence and leadership qualities. Being versatile and compliant, he is ready to take risks. Welcome you, sir. Thank you, Anikesh. Thank you. Thank you for the great introduction. Thank you, Priyadarshi sir. Thank you for the great introduction. So, how are you all? कैसे हो सभी लोग? How are We're you? fine, sir. Deep, Shailaja, We're Sonali, fine, Jay? sir. Awesome. Yes, sir, So, fine. so the first thing is we have got a very less time, so we'll just start without wasting much time. So, if you want me to start, just type start in the comment section. Just type start in the comment section if you want me to start this session. Just type start in the comment section. I'm waiting for all of you. Biswajit is saying start. Rina is saying start. What about the others? Aren't you all excited? Aren't you all excited? Just type start in the comment section if you all want me to start. Sudeep is saying start. Sunita is saying start. Bhavan is saying start. Awesome, awesome. Great, 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 great. So let's start with digital marketing. So क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड आप इससे आपका करियर कैसा बना सकते हो? आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ आज के सेशन में. तो मेरे पास टाइम है लाइक अराउंड 15 मिनट्स फॉर द प्रेजेंटेशन. मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी खत्म कर सकूं बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक 60-70 पेजेस का मेरा स्लाइड्स है. सो ज्यादा टाइम डिले ना करते आई विल जस्ट स्टार्ट. मेरा बस स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए प्लीज. स्क्रीन शेयरिंग के बाजू में ना ऑप्शन होगा अप साइड का. can I make you an host, sir? क्या बोल रहे हो? आपको होस्ट बना दूं? एक काम कर दो, मैं होस्ट. हाँ चलेगा. डन. थैंक यू. Done. Hello everyone, I am Digital Neil, son of a hustler dad and a super supportive mother, a half engineer turned evangelist, now corporate branding expert. So I started digital marketing at the age of 21, and right now I have trained more than 1,000 plus entrepreneurs and CEOs, and मैंने almost like 100 plus sessions लिए हैं, workshops लिए हैं, trainings लिए हैं on social media marketing.
right? And I'm a business growth strategist and a personal branding expert, and I'm a serial entrepreneur, and I have been selected as a mentor of change by Government of India. And sharing some snaps with you, जो हमने recently कुछ काम किया है. I have delivered sessions like more than 5,000 plus people till now, trained 1,000 plus CEOs. I have been invited as a guest and speaker at various government programs and MBA colleges. And this was a big achievement for me. Reason being, कि at the age of around like 22, I was being invited by this Texila International E-Conference, where like they have invited more than people from like 80 plus countries. And here are some of the snaps. So this is how I started, and this is how the journey began. So it is me delivering some sessions, workshops in colleges. Okay, so I would be telling you how to build your personal brand and a passive stream of income through sessions and workshops. See, अभी आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप Zomato ओपन करोगे या फिर लाइक ओला जैसा कुछ स्टार्टअप ओपन करोगे, प्रॉब्लम क्या होता है Zomato या फिर लाइक ओला ओपन ऐसा कुछ बड़ा स्टार्टअप करने में? इश्यू ये है कि अगर आप Zomato से कम्पीट करने लग जाओगे आज की डेट पे, रीजन इज कि लाइक Zomato के पास ऑलरेडी पैसा है, फंड्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टर्स है, कम्युनिटी है, नेटवर्क है, लोग है उनके पास, बट आपके पास ये सब कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है. चलो मान के चलता हूँ मैं, आपको पैसा मिल भी गया, आपको नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए 1-2 साल तो लगने ही वाले हैं, ठीक है. बट पर्सनल ब्रांडिंग में कैसा है ना, आप घर बैठे बैठे, राइट नाउ आई एम इन कर्नाटका, मैंने पूरा सेटअप यहाँ पे घर पे ही बना दिया है. आई एम बेसिकली फ्रॉम नांदेड़, महाराष्ट्र, बट आई केम टू कर्नाटका फॉर लाइक to my grandmother's home and I was stuck here. So basically मैंने पूरा सेटअप यहाँ से किया, एंड रिसेंट कुछ दिनों से मैं पूरा सेशंस एंड वर्कशॉप्स बैक टू बैक अराउंड लाइक 30 प्लस सेशंस एंड वर्कशॉप्स यहाँ से ही बैठ के दिए. तो ये कैसा पॉसिबल हुआ? इट्स जस्ट बिकॉज आपको क्या लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एक अच्छा मोबाइल फोन, अ गुड वाईफाई एंड अ गुड लैपटॉप, दैट्स इट. आपको अगर वाईफाई लैपटॉप भी है, अगर नॉर्मल मोबाइल भी है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम होम. ओके सो क्या क्या कवर करेंगे? वेबिनार ब्लूप्रिंट, हाउ टू क्रिएट अ ट्रिपवायर, strategies for building a good funnel, and how to get high ticket coaching clients. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि सभी टॉपिक्स कवर अप करेंगे. मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा बिकॉज ये 1 घंटे का सेशन है. तो अभी तो मैं बताऊंगा आपको, अभी सबसे मेन बिजनेस जो है अभी इंडिया में जो चल रहा है वो है अपना ट्रेनिंग का बिजनेस. ट्रेनिंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है या फिर बहुत ज्यादा मनी है. लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्लस अगर कोई ट्रेनर को हेल्प करते हो उनको ग्रो करने में, पीपल विल पे अ लॉट ऑफ मनी टू यू. बिकॉज सी, होता क्या कि अगर एक लीड का कॉस्ट 20 रुपीज आ रहा है, 30 रुपीज आ रहा है, एंड यू आर एक्वायरिंग नियर अबाउट 1000 प्लस लीड्स, एंड अगर वो सेल करने का उनका जो प्राइस है, अगर मैं मान के चलता हूँ ई कॉमर्स है या फिर लाइक रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट का तो आपको प्राइस पता ही है, लाइक 30 लाख 40 लाख रुपीज होता ही है. अगर 1000 लीड्स आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें से समझ लीजिए 5-6 लीड्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं, सी हाउ मच वैल्यू योर कस्टमर इज गेटिंग. सो दैट्स द रीजन डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे. तो अभी तो सबसे सीक्रेट नंबर 1 आपको मैं बताता हूँ, यू हैव टू क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और लाइक पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. अभी आपको मैंने क्या बताया था कि आप जोमेटो या फिर लाइक ओला की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप डिफिकल्ट है इनके साथ आप कंपेयर कर पाओ, बट अगर मैं बात करूँ पर्सनल ब्रांड की, सो सी इट्स मी, इट्स माय ब्रांड वर्सेस योर ब्रांड. ठीक है, द वे आई स्पीक, ठीक है, ये कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा. ये कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सकते हम लोग लोगों में कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते. इट्स जस्ट सोसाइटी जो कंपैरिजन करती है, बट आप किसी को भी बीट कर सकते हो, किसी बस आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट पुट आउट करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, एंड यू कैन विन दिस सोशल मीडिया गेम. ठीक है, इफ यू क्रिएट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, लॉट ऑफ फॉलोइंग, अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ नहीं, आपको बस घर पे बैठना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, जो भी आपको टॉपिक पे बात करना है. तो मैं आपको बस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग प्लस आपका जो भी लाइक इंटरेस्ट होगा. फॉर एग्जांपल, आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस अगर आप फैशन के ऊपर कुछ वर्कआउट कर रहे हो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप वर्क कर सकते हो. सी जितना सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आपको मैं बताऊं, सोशल मीडिया मार्केटिंग ही सब कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपको 2 स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी. पहली स्किल ये है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो भी स्किल्स है वो आपको एक्वायर करनी है. दूसरा स्किल है आपका पर्सनल ब्रांड एंड आपका सेल्स का स्किल. सेल्स इज द नंबर 1 प्रायोरिटी. अगर आप सेल्स के स्किल, बिकॉज अभी के टाइम पे कोरोना वायरस होने की वजह से इतने सारे बिजनेसेस जो है शट डाउन हो गए, और बहुत सारे शट डाउन होने के वर्ष पे है. इवन दो आई नो सम कंपनी जो 5-6 साल से चल रही है मार्केट में, बट उनको शट डाउन करना पड़ा जस्ट बिकॉज पैसा नहीं है. तो what people will be paying you right now at this point is, अगर आपके पास strong social media skills हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हो, प्लस आपके पास अच्छी स्किल्स हो ऑन सेल्स,
अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना, ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस सेल्स का स्किल। बिकॉज द ओनली रीजन कि यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स थे, लाइक सोशल मीडिया मार्केटर्स थे व्हेन आई स्टार्टेड, बट जस्ट बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट एंड वहाँ पे मैं वर्कआउट करके ये ग्रोथ मेरा इसलिए हुआ जस्ट कि दोनों स्किल्स का मेरे पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी और सेल्स स्किल भी। तो आप ये दोनों नॉलेज एक्वायर कीजिए, ये तो मेरा पहला सजेशन है। दूसरा है कि आप बहुत ज्यादा पर्सनल ब्रांड कीजिए सोशल मीडिया पे। अब मैं बोलता हूँ पर्सनल ब्रांड आपको क्यों क्रिएट करना है सोशल मीडिया पे, द रीजन बीइंग कि देखिए जब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे आपको बढ़ाना है। माइट भी कुछ लोगों के लिए यूट्यूब अच्छे से वर्क करेगा, कुछ लोगों के लिए इंस्टाग्राम अच्छे से वर्क करेगा। आप अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि राहुल जो है, राहुल ने बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर दिया ऑन लिंक्डइन, एंड शैला जो है उसने बहुत अच्छा ब्रांड क्रिएट कर दिया ऑन इंस्टाग्राम। अब होता क्या है कि जो बड़े ब्रांड्स है, जो कंपनीज है, वो आपको अप्रोच करेगी। आपने देखा होगा ना मोबाइल कंपैरिजन के वीडियोस, दिस इन्फ्लुएंसर्स गेट पेड जस्ट फॉर लाइक, राइट, सो यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजीज, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपका खुद का ब्रांड पहले क्रिएट करना पड़ेगा इन द मार्केट। मैं बस म्यूट कर लेता हूँ सभी को, एक मिनट चाहिए। So, सबसे पहले तो है आप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पर्सनल ब्रांड सोशल मीडिया पे कीजिए, और ये कैसा करना है मैं आपको आने वाले 10 मिनट में बताता हूँ। सीक्रेट नंबर 2, लाइक व्हाई पर्सनल ब्रांड, ठीक है, सी डेटा इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो फेसबुक पे प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक जो इंस्टाग्राम, सब लोग क्या कर रहे हैं, व्हाई दिस प्लेटफॉर्म्स आर फ्री इज ओनली बिकॉज दे हैव द डेटा एट अ सिंगल पॉइंट। उनके पास बहुत ज्यादा डेटा है, एंड डेटा होने का सीन क्या होता है कि लाइक किसी को भी अगर ऐड दिखानी है, अगर हम लोग फेसबुक पे ऐड दिखाते हैं, फेसबुक गेट्स पेड, राइट। सो डेटा इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप आपका जो है पर्सनल ब्रांड क्रिएट कीजिए, स्टार्ट गिविंग आउट फ्री ई बुक, स्टार्ट गिविंग आउट फ्री वीडियो सीरीज, एंड यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा, ठीक है। बिल्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। सी 4 फॉर्म ऑफ लाइक आप बना सकते हो। एक तो है वीडियो फॉर्म ऑफ कंटेंट बना सकते हो, ऑडियो फॉर्म ऑफ कंटेंट बना सकते हो, आप ब्लॉग्स बना सकते हो, या फिर आप इमेज बना सकते हो। अगर आपको वीडियो कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज गो विद द ऑडियो थिंग। ऑडियो के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ anchor.fm, ये वाला टूल है। वीडियो के लिए InShot नाम का टूल है, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। इमेज के लिए canva.com है, आप ये यूज कर सकते हो, और ब्लॉग्स के लिए यू कैन गो ऑन लाइक medium.com, quora.com, या फिर लाइक blogger.com, आप ये यूज कर सकते हो। अभी हमारा जो फ्यूचर है, इट्स मोर अबाउट दी वॉइस थिंग, ठीक है। बिकॉज सी राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, हे सिरी, कैन यू प्लीज सेट एन अलार्म फॉर लाइक 5 AM इन द मॉर्निंग। I can't set an alarm here. Hey Siri, Would you like a can you reminder please instead? 1 minute, मेरा लैपटॉप भी स्टार्ट हो जाता है। Hey Siri, can you please set an alarm for like 10 AM in the morning? I can't set an alarm here. अगर Would आप you like a reminder instead? अगर आप लैपटॉप में आवाज सुन पा रहे हो ना, तो लैपटॉप पे तो मैसेज आ गया है कि लाइक दैट इज रेडी टू सेट एन अलार्म। तो होगा क्या कि आगे जाके पूरा सब कुछ जो है अपने वॉइस पे कंट्रोल होगा। सो इफ यू वांट टू सेट एन अलार्म, आपको बस बोलना है कि लाइक हे एलेक्सा, कैन यू प्लीज सेट एन अलार्म। आपने एलेक्सा जो डिवाइस क्यों लॉन्च कर रहा है, जस्ट बिकॉज आगे जाके सब कुछ वॉइस पे ना, बिकॉज वी विल बी सो बिजी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो स्टार्ट बिल्डिंग द वॉइस कंटेंट। द प्लेटफॉर्म नेम इज anchor.fm, आप ये यूज कर सकते हो। बिकॉज जब यूट्यूब आया था, यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स ने तो प्लेटफॉर्म लेवरेज कर लिया, बट सबको लगता है कि लाइक पॉडकास्ट विल नॉट बूम इन द मार्केट। बट इफ यू स्टार्ट इट राइट नाउ, बिकॉज बहुत कम कंपटीशन है ऑन लाइक टिकटॉक एज वेल एज लाइक ऑन पॉडकास्ट, आप ये यूज कर सकते हो, एंड यू कैन ग्रो योर ब्रांड ऑन लाइक ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। स्पेंड एज मच एज यू कैन ऑन द पर्सनल ब्रांड। आप जितना अपने पर्सनल ब्रांड के लिए पेड एड्स कर सकते हो उतना पेड कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपके फॉलोअर्स तभी बढ़ेंगे जब आप पेड एड रन करोगे। एंड पेड एड्स भी आपको कब रन करना है, जब आपके पास 3000 के ऊपर फॉलोअर्स हो जाए और आपने 200 के ऊपर या फिर 500 के ऊपर कंटेंट डाला है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आप यूट्यूब पे करो तो मिनिमम 30 वीडियोस होने दीजिए उस पे। सी इट्स ऑल अबाउट द ब्रांड, इट्स माय ब्रांड वर्सेस योर ब्रांड। मैं किसी का नाम या फिर लाइक मैं किसी का कंटेंट कॉपी कर सकता हूँ, मैं किसी का कंटेंट कॉपी कर सकता हूँ, बट द वे ही स्पीक्स, फॉर एग्जांपल द वे शिवांगी स्पीक्स और लाइक सोनाली स्पीक्स, ठीक है, मैं इनका स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता हूँ। दे आर यूनिक इन देयर ओन वे, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू यूनिक। मे बी लोगों को आपका बात करने का स्टाइल पसंद आ गया हो। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो, एज वेल एज लाइक कनेक्ट विद एटलीस्ट 10 पीपल पर वीक ऑन लिंक्डइन, ठीक है। ट्राई टू कनेक्ट एटलीस्ट लाइक 10 पीपल पर वीक। अगर आप 10 लोगों से बात करोगे ऑन लिंक्डइन पे, रिलेशनशिप डेवलप करोगे। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग ही सब कुछ नहीं है, सोशल मीडिया के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो जरूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ आप कम्युनिटीज बनाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ आप रिलेशनशिप्स बनाओ,
तो ये सारी चीजें मैंने सब कुछ किया, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ इवेंट्स किया, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ मेरे क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज दी, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ क्या बोलते हैं 1-to-1 कंसल्टिंग दी है, सेल्स किया है. सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो. आप कम्युनिटीज बनाओ. एंड ऑल्सो आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 5,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स just because of one thing, that was like just using social media platforms and doing the events. ठीक है. एंड ये मीटअप, इंटर्नशाला एंड न्यूज़पेपर्स. आपने इंटर्नशाला तो इंटर्नशिप्स के लिए तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा. ठीक है, आपने इंटर्नशिप्स के लिए तो बहुत जगह पे देखा होगा. ठीक है, इंटर्नशाला पे. बट आपको क्या करना है पता है, इंटर्नशाला पे अगर कोई इंटर्नशिप का अमाउंट 5,000 रुपीज पर मंथ आता है ना, आपको उनको वहाँ पे अप्लाई करना है और उन्हें कॉल अप करना है. उनको बोलना है कि सर देखिए, आप वैसे भी एक इंटर्न को हायर कर रहे हो, मैं एज अ कंपनी आपको यही प्राइस में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूंगा. मेरा 2 या 3 लोगों का टीम है, आपका जैसा भी रिक्वायरमेंट है आप वैसा दे सकते हो एंड यू कैन पे मी एट द लास्ट. अब होगा क्या इससे कि आपको और यहाँ से कनेक्ट्स मिल सकते हैं या फिर लाइक बिजनेस मिल सकता है. meetup.com आप ये यूज कर सकते हो जहाँ पे बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं बैक टू बैक आप ये देख सकते हो. और आइडियाज कहाँ से मिल सकते हैं आपको और कॉन्टेंट्स का, लाइक न्यूज़पेपर्स को. फॉर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे अच्छा एक आइडिया बोल दो हमें. देखो जो बंदा आज के टाइम पे the person who is investing on the like in the newspapers at this point of time, आप imagine करो जो लाखों में होता है like advertising on newspapers या फिर like 10,000 20,000 रुपीज होता है. तो अगर आप उनको मंथली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो डिजिटल मार्केटिंग का, दे विल बाय फ्रॉम यू. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द ट्रिक्स जहाँ पे आप लीड्स जनरेट कर सकते हो. एज वेल एज ऑन मीटअप आपको क्या करना है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं बैक टू बैक उनके साथ आपको पार्टनर करना है. कि उनको बोलना है कि सर आपका मार्केटिंग में मैं फ्री में कर दूंगा, बस मेरा जो लोगो है आप वहाँ पे ऐड कर दीजिए. ठीक है. अभी क्या करना है आपको, रीड कमेंट्स, जितना हो सकता है कमेंट्स रीड कीजिए एंड रिप्लाई कीजिए. जितने कमेंट्स का आप रिप्लाई कर सकते हो. यू नीड टू बी एक्टिव इन द सोशल मीडिया ग्रुप्स. अगर आपके पास ट्राई टू बी एक्टिव, वहाँ से जो एक्सपर्ट्स है उनसे नॉलेज शेयर कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए और आपका नॉलेज शेयर कीजिए. ठीक है. एंड बिल्ड अ फनल एंड अपसेल और डाउनसेल. जस्ट लाइक दिस इज अ फ्री इवेंट. आपको क्या करना है कि जैसा ये इवेंट हो रहा है ना, आपको सेम टाइप्स के फ्री सेशंस एंड वर्कशॉप्स रखने हैं. अभी ये फ्री सेशन में, ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ मेरा जो लेवल 1 प्रोग्राम है, ठीक है, मेरे पास लेवल 1 प्रोग्राम है और मेरे पास लेवल 2 भी प्रोग्राम है. ठीक है. आपको मैं बस थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मेरे लेवल 1 प्रोग्राम्स का और लेवल 2 प्रोग्राम्स का. लाइक विद इन 2 मिनट्स आपको आइडिया आ जाएगी हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. आपको क्या करना है, इन द प्रोग्राम्स यू ट्राई टू अपसेल और डाउनसेल. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 90 मिनट्स बात कर रहे हो, आपको क्या करना है, लोगों को पहले तो बोलना है कि लाइक यस गाइस आई एम टेकिंग अ फ्री सेशन और अ फ्री वर्कशॉप फॉर 90 मिनट्स. गाइस प्रोवाइड द वैल्यू फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स. 45 मिनट्स तक आप प्योर वैल्यू प्रोवाइड करो और आखिरी के 15 मिनट्स में यू ट्राई टू सेल योर लेवल 1 प्रोग्राम, लेवल 2 प्रोग्राम या फिर लेवल 3 कोचिंग प्रोग्राम या फिर जैसा भी है. बिकॉज होता क्या है कि अगर आप कोई फ्री सेशन में बोल रहे हो एंड यू आर गिविंग द नॉलेज एंड इन द लास्ट यू आर ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, पीपल विल बाय फ्रॉम यू, पीपल विल बाय फ्रॉम यू. ठीक है. बट द थिंग इज, ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपके पास लाइक 45 मिनट्स है या फिर लाइक 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स में से बस आप 5 मिनट्स नॉलेज दे रहे हो एंड आप बस सेल कर रहे हो लाइक फॉर लाइक नेक्स्ट लाइक 85 मिनट्स. ऐसा नहीं करना है. गिव द वैल्यू फॉर लाइक 45 to 50 मिनट्स, प्योर वैल्यू. 10 मिनट सेल करो और आखिरी का जो 30 मिनट्स होता है यू टेक देम फॉर लाइक क्वेश्चन एंड आंसर्स. और आप उनको ये बताइए कि गाइस क्वेश्चन एंड आंसर्स है, तब तक आपके पास चांस है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द रेजर पे लिंक, आप जाके बाय कर सकते हो. ठीक है. आप जाके जो भी प्रोडक्ट बाय करना है यू कैन बाय द थिंग. ठीक है. एंड तब तक मैं क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर सकता हूँ. सो दिस इज हाउ यू सेल लाइक इन द इवेंट्स, वर्कशॉप. तो ये जो कैनवा का प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा था, तो दिस इज वेयर आई क्रिएट ऑल द डिजाइंस एंड लाइक विद इन 5 to 10 मिनट्स आप ये यूज कर सकते हो एंड आपके खुद के डिजाइंस बना सकते हो. एक मिनट आपको मैं दिखा दूँ, बस 2 मिनट दीजिए. तो अगर आप देखोगे ना, मेजोरिटी ऑफ द वर्क जो होता है मेरा, मैं कैनवा पे ही करता हूँ. ठीक है. जो मेरे क्लाइंट का वर्क होता है, क्लाइंट का वर्क हमारा अलग से डिजाइनर करता है, बट मेजोरिटी मेरा वर्क तो मैं इस पे ही करता हूँ, जो भी मुझे ग्राफिक्स बनानी होती है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस. सो आपको क्या करना है कि whenever you are like if you want to become a trainer या फिर वेबिनार के थ्रू सेल करना है, बिकॉज आज के टाइम पे सब लोग घर पे बैठने वाले हैं. एंड इफ यू एक्वायर दिस स्किल ऑफ लाइक सेलिंग थ्रू द वेबिनार्स, ये बस आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ आइडिया हाउ यू सेल. हम लोग बोलते हैं लाइक सी दिस इज अ कोर्स ऑफ दिस मच प्राइस, हम लोग कोर्स कैसा क्रिएशन करना है या फिर लाइक फेसबुक मास्टर क्लास जैसा है. ऐसे आपको कुछ ब्लूप्रिंट्स दिखाने हैं. ठीक है. ब्लूप्रिंट्स आप दिखा सकते हो एंड यू नीड टू गिव दिस 5 बोनसेस एंड यू कैन चार्ज एट XYZ प्राइसिंग. ठीक है. यू कैन चार्ज एट XYZ प्राइसिंग. तो होगा क्या कि पीपल विल बाय फ्रॉम यू. तो अगर आप कोई भी क्लाइंट एक्वायर कर रहे हो तो ट्राई टू यूज दिस वेबिनार स्ट्रेटेजी दैट कि क्लाइंट जो है 45 मिनट्स नॉलेज दे रहा है एंड
आप सेल कर रहे हो, बिकॉज अभी के लिए तो सब लोग घर पे ही बैठे, तो कस्टमर सबको चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट वुड बी वर्किंग इन 2020। एंड आप वेबिनार का एंड सोशल मीडिया का अगर कॉम्बिनेशन करते हो तो यू कैन विन द गेम। एंड सी, ऐसा नहीं कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कि like आपको बहुत अच्छा लोगो होना चाहिए, यू कैन टेक अ बैड लोगो इन द मार्केट और उसको बार बार इतना हिट कीजिए, ठीक है, कि अंटिल इट इज अ ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। यू नीड टू क्रिएट अ कम्युनिटी विच स्पीक्स अबाउट यू। आपको एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करना है जो आपके बारे में बात करती है। अगर आप हो भी नहीं हो उस कम्युनिटी में तो तभी, मतलब आपको इतने इवेंट्स करने हैं, सेशंस करने हैं, वर्कशॉप्स करने हैं, you need to give a chance to other speakers to speak in the sessions. Just like for example, Priyadarshi sir has invited me for speaking at this event. आप ऐसे लोगों को invite कर सकते हो, because होता क्या है कि like दोनों टाइप से मार्केटिंग होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल PD सर हैज इन्वाइटेड मी फॉर द सेशन। अब होता क्या है कि ये भी मार्केटिंग कर रहे हैं और मैं भी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो दोनों कम्युनिटीज एक साथ जब मार्केटिंग करती है, देयर इज अ क्राउड जहाँ पे आप लोग हो यहाँ पे, ठीक है, एंड पीपल कम टू दिस इवेंट्स। एंड कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर कॉम्पिटिटर्स क्लोजर। इसका मतलब ये है, आपका जो फ्रेंड्स है उनको आप क्लोज रखिए और आपके कॉम्पिटिटर्स को क्लोजर रखिए। इसका मतलब ये कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, जाके स्पाई कीजिए उन्हें। सबसे पहले जाके स्पाई कीजिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से, आपके खुद के वे से आप इंप्लीमेंट कीजिए। एंड रिपीटेशन इज की, एक बार करने से कुछ नहीं होता है, बार बार कीजिए। माइट बी इन योर फर्स्ट वेबिनार कोई लोग आपका कुछ प्रोडक्ट परचेस ना करे, बट आगे जाके दे माइट बाय। You need to be a brand ambassador and evangelist of your company. You need to speak about your brand. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है द ब्रांडिंग स्टोरीज, ठीक है, बट डिजिटल नील इज माय ब्रांड। मैं बार बार डिजिटल नील ही बोलता हूँ। मेरी कंपनी का नाम आपको मैंने अभी तक बताया नहीं, अभी मैंने बताया है, ठीक है। माय कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नील डिजिटल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, बट आई हैव टू ब्रांड एम्बेसडर, जहाँ पे अभी मेरा जो टीममेट है मोहित कोल्टे, ही इज द सीईओ ऑफ द ब्रांडिंग स्टोरीज। तो वो पूरा कंपनी हैंडल करता है एंड वो कंपनी का नाम लेता है बार बार, बट मैं किसका नाम लेता हूँ? मैं मेरे कंपनी का नाम लेता हूँ, दैट इज डिजिटल नील ऑन द रिपीटेशन मोड। पावर ऑफ अर्ली अडॉप्टर, जैसे कि आपको मैंने बताया, लिंक्डइन, टिकटॉक एज वेल एज द पॉडकास्ट एंकर.fm ऐप, ये 3 चीजें यूज कर सकते हो टू ग्रो अर्ली। आपके जितने भी जहाँ पे भी प्रोस्पेक्ट्स है, प्लीज बी प्रेजेंट दे। या पुट आउट मोर वीडियोस ऑन IGTV। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो ना, ओके मेरे पास 4 मिनट है तो मैं जल्दी फिनिश करता हूँ। ओके, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम में आप IGTV एपिसोड पुट आउट कीजिए, जितना IGTV एपिसोड आप पुट आउट करोगे, बिकॉज IGTV और कैरोसेल एड्स, आप लिख लीजिए IGTV और कैरोसेल, बिकॉज इंस्टाग्राम इज प्रमोटिंग IGTV एंड कैरोसेल्स एंड पुट आउट एटलीस्ट 10 to 12 डिफरेंट स्टोरीज पर डे। रीजन बीइंग, जब आप फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रियंका का, राहुल का और शैलेजा का। आप मुझे बताइए, अगर प्रियंका पोस्ट कर रही है 10 बजे, राहुल पोस्ट कर रहा है 11 बजे और शैलेजा पोस्ट कर रही है वापस से 12 बजे, ठीक है, आप मुझे बताइए, अभी बजे 12:01, सबसे पहले मुझे बताइए किसका मुझे स्टोरी दिखेगा, प्रियंका का, राहुल का या शैलेजा का? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। जिसका 12 बजे पोस्ट किया उसका दिखेगा 11 बजे या 10 बजे का? टाइप इन द कमेंट सेक्शन। असर, जस्ट टाइप योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। क्या लगता है आपको? क्यों पता है ना, बिकॉज एकदम रिसेंटली उन्होंने पोस्ट किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कि आपको एक दिन में 10 से 12 स्टोरी जब आप पर डे पोस्ट करते हो ना, तो होता क्या है कि आपका जब कोई भी इंस्टाग्राम ओपन करता है तो आपका स्टोरी एकदम टॉप पे दिखता है। एंड पोस्ट क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, दिस वर्क्स लाइक अ चार्म। आप जितना क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स पुट आउट करोगे, मोर पीपल विल नो अबाउट योर बिजनेस एंड दे विल स्टार्ट टू ट्रस्ट यू। लाइव वीडियो जाए जितना जा सकते हो, बिल्ड रिलेशनशिप्स, बिल्ड एलाइज, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन गाइस। सी, आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ कंटेंट टू स्टार्ट विद राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। You start building your brand, but the thing is, where people fail right now at this point of time is the execution. If you want to execute, go out and execute. Don't wait for the perfect moment. आपके पास परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट लैपटॉप, परफेक्ट हर चीज आने में बहुत टाइम लग जाएगा। परफेक्ट के लिए तो वेट मत कीजिए, जस्ट स्टार्ट व्हाटएवर कैमरा यू हैव, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग द वीडियोस, स्टार्ट पुटिंग आउट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, स्टार्ट कनेक्टिंग विद मोर पीपल, ठीक है। सम टूल्स टू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड, canva.com फॉर वीडियो एडिटिंग, आप फोटोज ले लो जल्दी से, और InShot फॉर वीडियो एडिटिंग, एंड Legion फॉर एनिमेशन, Anchor.fm फॉर मेकिंग योर ओन पॉडकास्ट। अगर आप जैसे Anchor.fm पे कुछ पॉडकास्ट बनाते हो, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक, स्पॉटिफाई, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सीक्रेट नंबर 2, यू नीड टू स्टार्ट विद अ फ्री वेबिनार थिंग वंस एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 6 months। आप जब हर एक वीक में फ्री वेबिनार कर रहे हो एंड यू आर रेडी एंड यू आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप गेम जीत सकते हो। बट आप फ्री वेबिनार करने से पहले यू नीड टू मेक द प्रोडक्ट्स रेडी। प्रोडक्ट्स मतलब क्या, कि जैसे कि आपको मैंने मेरे कोर्सेज दिखाया था,
कोर्स क्रिएशन फॉर्मूला, फेसबुक मास्टर क्लास, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये मेरे सब कुछ रेडी है, ठीक है, या फिर लाइक मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सेल इन द फ्री वेबिनार, ठीक है। आप एक बार अगर ये फ्री वेबिनार में ये स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू गिव द लॉगिन आईडी पासवर्ड, यू कैन गो टू invento.com, जहाँ पे आपको ये सारा मतलब लॉगिन ई प्लेटफॉर्म जो है आप क्रिएट कर सकते हो एट अ बेसिक प्राइस ऑफ अराउंड 4,000 रुपीज, लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम वैल्यू। वाई वेबिनार्स कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं वेबिनार्स का जो टॉपिक है ये स्किप करता हूँ फॉर नाउ। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ वेबिनार के टॉपिक। ओके, वेबिनार्स क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि वेबिनार जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कि आपको मतलब कि जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज zoom.com, मात्र 1200 रुपए पर मंथ, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, जैसे कि अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मैं बात करते करते, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग की बहुत ज्यादा इजीली ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। एंड थर्ड इज आपको ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट नहीं, आप कहाँ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं भी घर बैठे बैठे सेशंस दे रहा हूँ, वर्कशॉप दे रहा हूँ, एंड एवरी वर्कशॉप आई अर्न अराउंड लाइक क्लोज टू 30,000 रुपीज, जहाँ पे 60 to 80 पीपल कम फ्रॉम माई वर्कशॉप फॉर लाइक सोशल मीडिया मास्टर क्लास, ठीक है। एंड you can reach to a larger number of audience. So for example 40 people are here in the room and I don't know कि like आप कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, किस सिटी से हो, ठीक है, आप कहीं से भी लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ कर सकते हो। एंड बाहर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जस्ट लाइक कि बाहर अभी बारिश हो रहा है तो मुझे वेट करने का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड हु शुड डू इट? बेसिकली ट्रेनर्स एंड कोचेस, स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स एंड टीचर्स। आपको राज की बात बताता हूँ, सब लोग कर सकते हैं वेबिनार्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स बोलता हूँ, जूम प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सिस्को अवेलेबल है, गो टू वेबिनार अवेलेबल है, ठीक है। बट आप मैं रेकमेंड करता हूँ कि जूम पे जाइए या फिर लाइक गूगल मीटिंग्स पे जाइए, जो कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर लाइक चीप भी है, ठीक है। अभी लोगों को बुलाना कैसा है वेबिनार में, ये बोलता हूँ मैं, बस 3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, हाउ टू गेट पीपल फॉर द वेबिनार, ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट अ वेबिनार। अभी तो पहले आप canva.com पे जाइए, आपका एक पोस्टर बना लीजिए, उसको प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए फॉर लाइक फ्री वेबिनार। एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लीजिए विद नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एंड डेजिग्नेशन। थर्ड, एक अच्छा सा मैसेज सर्कुलेट कर लीजिए ऑन फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स। एंड सी, लीड कैप्चर करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। लीड कैप्चर होने के बाद उसको फॉलो अप लेना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेयर मार्केटर्स फेल इस लीड कैप्चर हो गया बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। अगर आप उनको बार बार फॉलो करोगे ना, 4 या 5 बार व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो या फिर 2-3 बार कॉल करते हो या फिर मेल भेजते हो, तब लोग आएंगे। बिकॉज पीपल प्रोक्रास्टिनेट, बहुत लोग आलसी होते हैं, पहली बात तो ये लोग आलसी होते हैं, ठीक है। अगर आप बार बार रिपीट नहीं करोगे भूल जाएंगे, ठीक है। एंड सेंड अ थैंक यू नोट टू ऑल द पीपल, एंड लाइक व्हाट्सएप के थ्रू आप एक रिलेशनशिप डेवलप करना स्टार्ट कर दो। एंड एक बार वेबिनार स्टार्ट हो जाए तो इतना ज्यादा वैल्यू दो, इतना ज्यादा वैल्यू दो, पीपल जस्ट शुड से वाओ। फर्स्ट 45 मिनट्स प्योर नॉलेज, नो सेलिंग। आखिरी के 15 मिनट्स आपका लेवल 1 प्रोग्राम बताइए एंड गिव देम अ हैवी डिस्काउंट। तब तक आप क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप ये बता सकते हो, अगर आप मान के चलिए, अगर 5 लोग भी आपके वेबिनार के थ्रू आपका 5,000 वाला कोर्स बाय करते हैं, 25,000 रुपीज का तो आपको रेवेन्यू आ ही रहा है, राइट, ठीक है। तो अगर आप मतलब 1 महीने में अगर 4 वेबिनार्स भी ले रहे हो, ठीक है। और ये देखो, ये एकदम इमीडिएटली नहीं होने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 3-4 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए लग जाएंगे, अच्छा खासा कोर्स क्रिएट करने के लिए लग जाएगा। बट इफ दिस फॉर्मूला अगर आपको आ जाता है, यू वुड बी अर्निंग दिस अमाउंट, ठीक है। अभी वो कैसा आएगा, आपको हर वीक में वेबिनार लेना है, वेबिनार में अगर 100 लोग भी आते हैं, आपको 5 लोगों को सेल करना है। Secret number 3 and the last, you have to prepare your level 1, level 2 and level 3 कोर्स, ठीक है। लेवल 1 कोर्स में कहाँ क्या होता है ना, डू इट योरसेल्फ, जहाँ पे मेरा लेवल कोर्स होता है, लेवल 1 कोर्स, जहाँ पे पीडी सर कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ, जहाँ पे कुछ 1,000 रुपीज हम लोग चार्ज करते हैं, 7 डेज का कोर्स होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मिनिमल चार्ज करते हैं, डू इट योरसेल्फ। हम लोग सब स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, बट करना किसको है, आपको करना है, ठीक है। एंड 3 डेज कोर्स कर सकते हो आप क्रिएट, या लाइक 2 आवर्स डेली, तो हमारा तो कुछ 7 डेज का कोर्स होता है, ठीक है। एंड आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देना है इस 7 डेज या लाइक 3 डेज कोर्स में, एंड लॉट ऑफ फ्रीबीज। एंड चार्ज मिनिमम लाइक 500 रुपीज से 1,000 रुपीज के बीच में आप चार्ज कर सकते हो। कीप अ टारगेट ऑफ अराउंड लाइक 50 पार्टिसिपेंट्स आपके लेवल 1 में आने ही चाहिए। अगर 50 पार्टिसिपेंट्स आते हैं विद द रेट ऑफ लाइक 500 रुपीज, 25,000 इज द रेवेन्यू। अब जो लेवल 1 में आ रहे हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है लेवल 2 में, जो है डू इट विथ योरसेल्फ, डू इट लाइक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा, गाइडेड प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल अकाउंट कैसा क्रिएट करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। आप ये बोल सकते हो, जिसका कॉस्टिंग आप 3,000 रुपीज रख सकते हो, इवन दो लाइक 5 पीपल कन्वर्ट, रेवेन्यू इज अराउंड 15,000 रुपीज, ठीक है। एंड वीकली मीटिंग्स रखिए फ्री में, एंड गिव सम एक्शनेबल स्टेप्स। एंड लेवल 3 जो है
1-to-1 कंसल्टिंग रखिए, 1-to-1 कंसल्टिंग, जहाँ पे आपको ज्यादा क्लाइंट्स लेना नहीं है, आपको बस सेलेक्टेड क्लाइंट्स ही लेना है, 1 या 2 क्लाइंट्स मैक्स टू मैक्स, दैट्स इट। अगर इससे क्या होगा ना, जब आपके 1 से 2 क्लाइंट्स हो जाएंगे, आपको सी मेन थिंग इज वी हैव टू लाइक जो अपना लाइफ है टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज द रीजन मैंने मेरा जो कंपनी है एक पर्सन को दे दिया है बाय गिविंग द स्टेक्स ऑफ माय कंपनी, द ओनली रीजन इज आई वांटेड द फ्रीडम कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लाइक क्लाइंट कॉल कर रहा है, आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर द क्लाइंट्स। इवन दो मैंने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरे कॉल्स बिजी करके रखे, जस्ट बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन ओनली 2 थिंग्स, डिलीवरिंग द क्वालिटी एंड लर्निंग मोर एंड मोर थिंग्स, ठीक है। एंड आप सी इसमें क्या है ना, आपको टाइम बाउंडेशन होता है। फॉर एग्जांपल इफ वन क्लाइंट इज पेइंग लाइक 15 to 20,000 रुपीस, आपका 2 घंटा या 4 घंटा जो भी महीने का होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये and once like every week you set it for 90 minutes and keep a limit of like this was all about on how you can learn. All good? Did you like the session? Yes or no? Did you like the session? Just type awesome in the comment section if you really love the session. Just type awesome in the comment section if you loved today's session. So time ज़्यादा नहीं था, so जितना मैं fast थोड़ा ज़्यादा गया. Just type awesome in the comment section if you really liked today's session. Awesome. So let me know in case you have any questions, doubts. Okay, so cheapest traveling is asking how to grow the Instagram channel page. Your fashion 67 followers. So we should go for Instagram self promotion by paying it, or we should go account with more followers to promote our page. Okay, तो अभी ये क्या पूछ रहे हैं कि इनको उनका followers बढ़ाना है, इनका नाम है अकाउंट का your fashion 67.in। तो पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका अकाउंट जो है पहले आप ट्रेडमार्क उसका मिलता है या नहीं वो पहले आप देख लीजिए, बिकॉज आई थिंक योर फैशन 67.in का ट्रेडमार्क ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो नाम को चेंज कर सकते हो तो प्लीज आप चेंज कर लीजिए, and never use the names like 67 7 5 नंबर्स यूज नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, या फिर लाइक डिजिटल नील हो गया। अब ये जो नाम है ना एकदम शॉर्ट है और आप बहुत इजीली रिमेंबर कर सकते हो, बहुत शॉर्ट है और इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो। बट अभी जब फॉर एग्जांपल आप 67 अंडरस्कोर ऐसा कुछ नाम यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, अकाउंट सर्च करने में प्रॉब्लम होता है, तो पहले तो ये आप नाम ऐसे यूज मत कीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका अकाउंट ग्रो करना है, स्टार्ट पुटिंग आउट मोर कंटेंट, स्टार्ट पुटिंग आउट एटलीस्ट 3 पोस्ट पर डे, ठीक है, 3 पोस्ट पर डे एंड एटलीस्ट 10 लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डे ऑन योर इंस्टाग्राम चैनल, अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है। अनलेस यू हैव लाइक अराउंड 3000 फॉलोअर्स एंड जब तक आप 500 पोस्ट नहीं डालते हो तब तक पेड एड्स मत कीजिए। वंस यू डू दिस थिंग लाइक जहाँ पे आपको 500 पोस्ट बन गए हैं एंड एटलीस्ट यू हैव लाइक 3000 फॉलोअर्स, देन गो विद द पेड एड्स, बिकॉज पेड एड्स में होता है कि कोई भी अगर पेड एड्स आपका देखता है, दे ओपन द अकाउंट ओपन करने के बाद वो देखते हैं कि यार इस पर्सन को जो है ना इतना अच्छा कंटेंट डाला है एंड लेट मी फॉलो हिम, तभी वो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो पहले तो है आप बहुत ज्यादा कंटेंट डालिए, ठीक है। दूसरा है आपने जो क्वेश्चन पूछा है आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए क्या? यस, यू शुड कनेक्ट विद मोर एंड मोर इन्फ्लुएंसर्स। अभी इन्फ्लुएंसर्स से कैसे कनेक्ट करना है ये भी आपको आइडिया बताता हूँ मैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपके हैं 200 फॉलोअर्स, try to collaborate with the person who is having 500 followers or like 1000 followers। एक बार आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि भाई तुम मेरा इसका प्रमोशन करो, मैं आपका प्रमोशन करता हूँ, क्रॉस प्रमोशन करते हैं। और एक बार क्रॉस प्रमोशन होता है एंड वंस यू रीच 1000 फॉलोअर्स 2000 फॉलोअर्स जिसके पास है आप उन्हें अप्रोच कीजिए, क्रॉस प्रमोशन कीजिए। जैसे आप 2000 फॉलोअर्स पे आ जाते हो, अप्रोच अ पर्सन हु इज हैविंग 5000 फॉलोअर्स। सो दिस इज हाउ यू नेटवर्क एंड बिल्ड योर ऑडियंस, ठीक है। Biswajit is asking how to find our target audience for digital products। See, आपके पास exactly क्या products है, digital products मतलब क्या है, पहले तो वो मुझे बताइए कि आपके पास क्या है, कि मतलब डिजिटल में डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है या फिर कैसे आपका ऑडियंस क्या है। अभी आपको ऑडियंस जैसा डिफाइन करना है ना, एक मिनट अनिमेश को अनम्यूट करना है, मैं एक मिनट अनम्यूट कर देता हूँ। अनिमेश इज नॉट हियर आई गेस, अनिमेश का नाम दिख नहीं रहा है यहाँ पे।
अनिकेश पानी है क्या? अनिकेश पानी या ओके, अनिकेश आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। यस, प्रियदर्शी आपको भी अनम्यूट करता हूँ मैं जी। सो और 3 मिनट्स में एंड अप करता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज और एक स्पीकर है, उनको भी बात करना है। ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करना है? आपको क्या करना है, business.facebook.com पे जाना है, लिख लीजिए business.facebook.com पे जाना है। business.facebook.com पे आप जैसे ही जाओगे ना, ठीक है, आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे एड्स मैनेजर में ना वहाँ पे आपको आएगा पीपल एंड ये बोल के आता है वहाँ पे मैनेज, एक मिनट रुक जाइए मैं भूल गया नाम, ऑडियंस टारगेटिंग बोल के सेक्शन आता है अलग से लेफ्ट हैंड साइड में, ऑडियंस रिसर्च बोलकर। तो वहाँ पे आप ऑडियंस का रिसर्च कर सकते हो कि लाइक किस चीज में कितने लोगों को इंटरेस्ट है। एज वेल एज आपको रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना है कि कॉम्पिटिटर्स के पास जाना है, एंड कॉम्पिटिटर्स के जो फॉलोअर्स है उन्हें उनके अकाउंट्स ओपन करने हैं, एंड उनको आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। यू नीड टू चेक व्हाट इज द टाइप ऑफ कंटेंट दैट दे आर पोस्टिंग। Okay, cheapest travel is asking he's having 7,000 followers and 2,000 posts. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने 7,000 फॉलोअर्स गेन किए हैं। अगर वो ऑर्गेनिकली गेन किए आपने, इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपने पेड मतलब किसी सोर्स से जनरेट किए, फॉर एग्जांपल आपने फेक फॉलोअर्स लिए, तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबको आप पहले तो अनफॉलो करने के लिए कह दीजिए, आप लाइक रिमूव कर दीजिए फॉलोअर्स को। अगर वो केस नहीं है आपका, ठीक है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी 2% का एंगेजमेंट रेट होता है, जब भी अकाउंट्स बड़े होते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जिस पर्सन के पास अगर फॉर एग्जांपल 200 फॉलोअर्स है, उसका एंगेजमेंट रेट ज्यादा होता है। बट आपके जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर बनना स्टार्ट होते हो, आपका जर्नी डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और आपके फॉलोअर्स आपके साथ एंगेज करना कम कर देंगे। सो ये नॉर्मल है। आप पेड एड स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट पोस्टिंग आउट मोर कंटेंट। ओके, तो गाइस चलो मेरा टाइम तो हो गया है, ठीक है। आपके पास और क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @digitalneil @digitalneil। यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम पे, जस्ट गो एंड फाइंड @digitalneil एंड जो भी क्वेश्चंस है यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई विल बी लाइक आंसरिंग जैसे टाइम मिलता है मुझे। Hello, sir. आपको अनम्यूट कर दिया निकेश ने। Hello, sir. Yeah. We have some other questions as well जैसे निकेश in the chat box. So our first question was from Sudeep हाँ Kumar बताइए। Sahu. Yeah. He asked, sometimes our product has a global target audience. हाँ How can we handle the time zone issue to maximize our visibility? हम्म So then ask, you can answer the question. Okay, so Sudeep is asking, good morning, sir. Sometimes our product has a global target audience. How can we handle the time zone issue to maximize our visibility? So, Sudeep, what you can do is Facebook पे जा सकते हो। Facebook पे ना क्रिएटर स्टूडियो का अलग से उन्होंने ओपन करके रखा है, जहाँ पे ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग होता है आपके पोस्ट का, ठीक है। ऑटोमेटिक पोस्टिंग होता है उस टाइम जोन के हिसाब से। तो यू कैन यूज अदर प्लेटफॉर्म्स इज लाइक अपना buffer.com, ठीक है, और hotsuite.com, बट ये वाले पेड प्लेटफॉर्म्स है। सो मे बी यू कैन गो विथ लाइक फेसबुक पे जाना है आपको, और फेसबुक पे आपके पेज पे क्रिएटर स्टूडियो आपको दिख जाएगा, एंड उस टाइमिंग के अनुसार आप पोस्ट कर सकते हो। Okay, sir. Yeah. So our second question is from आशीष, मुझे बस बताइए अभी, हाँ अभी पीडी सर को भी बात करना है, तो कब तक खत्म हो जाएगा? बिकॉज ही आल्सो हैव्स टू स्पीक, मुझे बिकॉज 11:30 का डेडलाइन दिया था ना, इसलिए बोल रहा हूँ। I think it's fine right now. I can We have answer only four, five Yeah, questions. Neil, you can carry on for next 10 minutes. I can come down. Not an issue. हाँ, तो मैं एक सेकंड करता हूँ बिकॉज आपका भी बात करना है सर, तो मैं ये करता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो और क्या क्वेश्चन से बता रहे आप अनिकेश? Our second question is from Madhushmita Sahu. What are the best ways to learn to be the best digital marketer? प्रैक्टिस, ठीक है। सी नॉलेज जो है, ठीक है, देखो डिजिटल मार्केटिंग का आपको ये इंडस्ट्री बोलता हूँ, ये ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे चीप प्राइस में भी कोर्सेज दे रहे हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द लाइक लर्निंग, it's never about learning, it's more about practicing. The more you practice digital marketing, the more you practice, the more you will learn, because digital marketing is some ऐसा टॉपिक है, मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 70-80 हज़ार रुपए कहीं पे डालो और वहां से सीखो आप,
ठीक है, मे बी आप पीडी सर को बोल सकते हो हमारा तो जो लेवल 1 प्रोग्राम है और लेवल 2 प्रोग्राम है, इट इज जस्ट लाइक 500 रुपीज और 4000 रुपीज फॉर लाइक लेवल 1 एंड लेवल 2 प्रोग्राम्स. अब इसमें क्या है ना कि इट्स मोर अबाउट द प्रैक्टिस, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू स्पेंड मनी ऑन द पेड एड, मतलब ऑन द कोर्सेज, अच्छा खासा मनी. आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्पेंड मोर मनी ऑन द पेड एड्स एंड वहां से जाके आप ज्यादा सीखो. सो मधु स्मिता, आपको तो मैं बोलता हूँ लाइक आप कहीं से भी सीख सकते हो, but invest more money in the paid ads. The more you do the paid ads, the more you will grow and the more you will learn. Focus more on the application part. The more you will apply, the more you will learn. Sir, our third question is from Shivangi. Yes. She's asking, is social media marketing better for B2C or B2B सी businesses? डिपेंड्स करता है शिवांगी. अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो B2C इज वेरी गुड. बट अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो B2B आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा टारगेट कर रहे हो. ठीक है, अभी इसमें टारगेटिंग भी आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है. अगर आप B2B कर रहे हो तो अगर आप HRs को कनेक्ट कर रहे हो, CEOs को कनेक्ट कर रहे हो, आपको पूरा फनलिंग बनाना पड़ता है, पूरे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं. बिकॉज अगर आप B2B कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है आपको वो देखना पड़ेगा. अगर फ्रॉम फेसबुक यू कैन ब्रिंग ऑल द CEOs अंडर लाइक फॉर वेबिनार और सम सेशन, वहां से भी कन्वर्जन हो सकता है अच्छा खासा. तो इट डिपेंड्स, सबके लिए अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल माइट बी B2B कुछ लिंक्डइन पे आप कर सकते हो और B2C यू कैन डू ऑन लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. Okay, she has also another question. Is outreach is an important part of social media marketing? यस, आउटरीच आपको करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना है. बिकॉज सी सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी तो लॉकडाउन के बाद हर 5 में से 4 लोग तो डिजिटल मार्केटर है, सोशल मीडिया मार्केटर है. एंड दैट इज द रीजन आई नेवर से आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर. आई से आई एम अ बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट. आई विल हेल्प यू आउट टू बिल्ड योर बिजनेसेस, बिल्ड योर सिस्टम्स. ठीक है, सी 5 में से हर 4 लोग तो ये तो फील्ड में ही. आपको इस टाइम पे ना लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना है. राइट नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो. आप जाओ उनसे बात करो, उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप करो, बिकॉज अपॉर्चुनिटी छुपी होती है. हर ऑन्टरप्रीनियर एक ऑन्टरप्रीनियर मिनिमम लाइक 200 लोगों से कनेक्ट होता है, लाइक मिनिमम 50-60 लोगों से तो कनेक्ट होता ही है. एंड इवन आई एम कनेक्टेड विद मोर देन 4000 प्लस 5000 प्लस ऑन्टरप्रीनियर्स बिकॉज ग्रुप्स है, इवेंट्स करता हूँ. दैट्स द रीजन वो लार्ज नंबर पे. बट इफ यू कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ पीपल, आपका नेटवर्क बढ़ेगा. जस्ट लाइक पीडी सर, ही इज हैविंग अ ग्रेट नेटवर्क. जस्ट ट्राई आस्किंग लेक्चर में किसी के साथ आउटरीच कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे और थोड़ा सा हेल्प हो सकता है. And if you are learning digital marketing, try to give the services for like free at a minimal cost for some time. Okay, Yeah, sir. and Our next so question is we from almost सब Vijay. हो गए. We have only इससे two help हो. questions, sir. Okay. Hello. हाँ, बताइए. So suppose I have less followers. The question is from Vijay. Suppose I have less followers in Instagram, but I want to promote my content so that I can get more promotion. How actually should I grow? Should I use Okay. So hashtags? never focus. हाँ, never focus on followers. Never focus on followers. Even though I don't care about the follower stuff, I don't care. रीजन बिंग आपको मैं सिंपल बोलता हूँ. अगर आप धंधा कर रहे हो, फोकस ऑन द मनी पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आप ब्रांड बिल्डअप करना चाहते हो तो फोकस ऑन द लॉयल फॉलोअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपके फॉलोअर्स कितना एंगेज कर रहे हैं आपके कंटेंट के साथ, आपके इसके साथ. एंड दूसरी बात ये है कि आप जैसे कह रहे हो लाइक हाउ शुड आई ग्रो ऑन लाइक यूजिंग हैशटैग. सी हैशटैग इज वन ऑफ द वेज टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, बट इट इज नॉट द ओनली वे. ठीक है, हैशटैग इज नॉट द ओनली वे, बिकॉज हमारे पास मिथ ये है कि हैशटैग से हमारा अकाउंट ग्रो होता है. बट हैशटैग से अकाउंट ग्रो नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, बिकॉज आपको हैशटैग्स थोड़ा सा प्रॉपरली यूज करना पड़ता है. उसका भी प्रॉपर 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, लाइक 15-20 मिनट लगते हैं उसको पूरा सीखने के लिए हैशटैग भी. बट हैशटैग ही सब कुछ नहीं होता है. आपका कंटेंट ज्यादा अच्छा हो, ये मेन चीज है. आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल. अभी आई एम जस्ट शोकेसिंग एन अकाउंट ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स. ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दीजिए आप. So it's more about the content. It's more about the content on how you post the content. आपका content कितना अच्छा है. If the content is good, people will start to follow you. If the content is good, people will start to follow you. So for example, uh,
So as you can see, Abhishek sir, he is one of my friend का mentor. तो अभी इनका मैं बोलता हूँ, इन्होंने 2 साल पहले इनका अकाउंट स्टार्ट किया था on like YouTube, and within like 2 years 92.6 thousand सब्सक्राइबर्स आ गए YouTube पे, एंड ये हर 2 या 3 दिन में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट पुट आउट करते हैं. The reason why I'm showing this is a very good account. मतलब he is not a digital marketer, nor he has hired an agency. ठीक है, इन्होंने सब कुछ खुद से किया, वीडियो एडिटिंग भी खुद से किया, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट हिम, कि बहुत सारी चीजें खुद से करते हैं. एंड अगर देखोगे कि इन्होंने 92.6 थाउजेंड फॉलोअर्स जनरेट किए, एंड ये द रीजन इज ओनली कि बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा या फिर लाइक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट पुट आउट किया था on social media. So put out more valuable content on your social media accounts, and your account will grow. Okay, sir, our next question is from Trina. How important is having organic followers? Hello. Hello, Neil, are you there? I think he left. His call got disconnected, I think. Okay. We can postpone our query session. Okay. Yeah. So our next speaker is Mr. Priyadarshi Sarangi, CEO Knowledge Innovation and Technology Private Limited, a result-oriented professional with over 15 years of experience in IT and business analysis field. He has experience in ERP implementation and e-commerce design and implementation. He is the founding member and coordinator of NGO Shiksha Aur Seva. He is also the strategic advisory member to USSA Odisha, and he has the in-depth knowledge, functional knowledge of logistics, import and export, and inventory management. So welcome, sir. Okay. Hi, everybody. Yes, I'm Priyadarshi, and popularly known as PD, what Neil was saying about PD. And yes, thank you, Aniket, for giving us such a beautiful introduction. Yes, I'm here to tell you about the digital marketing part, and how we are using analytics to use the digital marketing things. What actually that is how means we'll be implementing digital marketing using analytics. This is what our today is my point of discussion is. Okay, so what actually is digital marketing is we are doing a marketing where we can get these other details, that is our details, personal details, financial details, and the business details, so that we can track to the consumer as per our need. Okay, the best example of analytics, or the best examples where we can use the digital marketing. Yeah, hello, am I audible? So sorry, the net. Yes, you're audible. तो आप continue कीजिए sir. हाँ, अब मैं continue कर रहा हूँ. Give me 10 minutes. Yes, thank you. The Yes, best thank you. example of, yeah. So I'll use it, no? Yes. Neil, you be there. Let me complete it. Then there will be question and session. अच्छा वापस रखना है. Okay, ठीक है, मैं रुकता हूँ. Okay. Okay. So this is what the examples of digital marketing. The best example that I can show you is Cambridge Analytics. They started collecting the data using Facebook. Is the tool they are using is the Facebook. So using the digital marketing promotions, the strategies, they started collecting the data, and using data analytics, they started manipulating the election strategy. The same thing which we are doing right now using the social media marketing. You use a Facebook, you know what the customer is thinking, what the customer is doing, what product he is liking, where he is going, how he is going, everywhere. We can track it up. We are using Google Maps.
If you are using Google Maps, I can track where you are, and I can pitch a product as per your requirement, as per your location. That is what the device data collection and locations. From your mobile, I can know, okay, suppose Neil is coming, he's in Karnataka, and he's in this district, this state. He can, and I can pitch my product as per his requirement at that moment of time. The last is the facial recognition. That is what the Chinese government is right now doing. They are using Facebook to collect the data of many of the customers using the facial images, and we are using that tool so that we can track the customers, where they are going and what their feelings. Like there are certain tools we are using for e-commerce transactions, and for some part we are using in our physical stores, where from the eye movements as well as from the facial expressions, we can understand the customer is happy, the customer is interested, the customer is not happy, customer is not interested. He is interested, but something is stopping him. So that instant discounts can be given by the store manager, or the store manager can take a decision on it. So this is one of the examples. Requirements. Why? Everyone wants to grow his or her business. If you are integrating social media and digital marketing with the analytics, yes, we can grow the business like anything. Personal branding. If I know who are the persons are requiring my help, or they are interested to getting connected to me, so I can increase my personal branding very fast. Suppose I am talking to a technical geek about a business strategy, is he going to understand? No. Or even I'm going to talk with a business strategy guy, business guys about a technical thing. Is he going to understand? No. So I'm losing my personal branding because I don't know where I'm pitching. I'm pitching to the wrong person. And from the business perspective, understanding the consumer and knowing their requirements. If I know that like Neil is staying in Karnataka, he is staying near in his village. In the long term, he is not able to move. Right now, he will be using all the things online. For that, he needs a huge amount of data. So if I am a data delivering organizations using other medias, or I'm a telecom company who is delivering data, I can connect to Neil. Okay, fine. You are using 2 GB of data. I can, and you are paying 100 rupees. I can give you 10 GB of data if you pay me for 500 rupees. So Neil will be thinking, okay, fine. I'm getting 1 GB of data at 50 rupees, and then he'll pay the money, and it will grow my business. I know the particular requirement of Neil at this location at that moment of time. That is what we are using. Okay, this much is from our end. We are knowledge, and we are into AI, ML, and deep tech. Basically, this is the area we are working. We are working into machine learning also. And what Neil is doing, he is doing the front end part. What we are doing in the back end part. Thank you. Any questions? Okay, I am getting a question from Cheapest Traveler. Can I know your name, sir? It is mentioned as Cheapest Traveler. Can I know your good name? He is asking a question. What are the Ambika Saha? Hi, Ambika. You are asking a question. What are the key behaviors of maximum clients of getting irritated by our content or post, because we can't analyze them, and in the result they will unfollow us? Yes. When you are spamming, when you are sending mails, suppose you are sending tons of mails to me. I am a person who will be looking for analytics kind of things, or who will be looking for startup kind of things. If I will be getting mails, okay, you have to go for a tours and travels this location, do some investment here. So it will obviously, those things will be spamming for me. So I'll be getting irritated, because those are not my area of interest. So what I will do, I will start making, okay, fine, these are all spams, and that will start impacting your business. Like if you are sending a mail to my Gmail, or you are sending a mail from your Gmail to my mail ID, and 5 or 6 mails I am putting as spam, then automatically Google, they have their bots. Automatically their bot will start getting identified. Okay, what Mr. Ambika is saying from this, sending from this Gmail ID is a spam. So they will start blacklisting your IPs. They will start blacklisting your emails. So whenever you are sending to your concerned persons, at a time it will start. It will be going to their spam folder, not to the right inbox folders. So we need to understand actually what the consumer is expecting from us. Then we'll start firing the mail. So it will be a good thing that at a time the consumer will not delete. Like
Neil was explaining about the digital marketing. When he's saying about the digital marketing, our targeted customer are the persons who are interested for digital marketing, or they are interested to earn some money using digital marketing. So those are the persons who are attending the session and they are asking queries, and Neil is exactly performing what they are expecting, and he's also getting the same the exact number of customers or the perfect customers to whom he will be entertaining. So it's a mutual beneficial kind of things. This is what we are going to do. Any other queries? Yeah, Aniket, I am good. Neil, can you please unmute Aniket? Neil, can you please unmute Aniket? Yeah, done. Hello. Okay, thank you. Hello, sir. Hey, hi. Our last question, which was from Trina. How important is having organic followers? Uh, the question is open to Mhm. both of you, sir. Yeah, for me, yes, organic followers is the priority thing because we are not doing like I hope Neil should be knowing. We used to use some tools in Facebook to increase the followers. We used to do some tweaking and used to increase the followers. And slowly, Facebook started identifying and they changed their logic, and that number of followers was not we are not able to increase. But yes, at any moment of time, organic followers is one of the best thing because actually it connects to the interested person. That is my way of working, and I hope Neil will be the right person to answer it. Over to you, Neil. सर सॉरी मैं नेटवर्क इशू था तो मैं देखा नहीं Sir. क्वेश्चन प्लीज मुझे बताएंगे क्या एक क्वेश्चन Hello. The question is how important is having organic followers? हाउ इम्पोर्टेंट देखो ऑर्गेनिक का तो आप भूल जाओ ऑर्गेनिक ऐसा कुछ है नहीं चीज जो बचा हुआ है और जो बचा हुआ है वो चला जाएगा कुछ दिनों में बिकॉज ऑर्गेनिक इज कम्प्लीटली अबाउट टू गो डेड yes it is important to have organic followers ठीक है but see at a point अगर आपको ग्रो करना है आपका चैनल तो you have to go with the paid ads अगर आप पेड एड्स रन नहीं करोगे जो आपका ड्रीम है 20,000 40,000 50,000 या लाइक 80,000 वहां पे पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम एंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स लग जाएंगे तो आई वुड रेकमेंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू गो विद द पेड एड्स एंड ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है बट सी फॉलोअर तो फॉलोअर है पहली बात तो ये है फॉलोअर तो फॉलोअर है अगर वो ऑर्गेनिकली आ रहा है या फिर पेड एड्स से आ रहा है पेड एड्स में अभी अच्छी बात क्या होती है ना आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हो फॉर एग्जांपल किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है आप उसके बेसिस पे टारगेट कर रहे हो तो पेड एड्स करके भी कुछ मतलब पेड एड्स करते हो तो उतना भी कुछ नुकसान नहीं है you can do because you have to invest in yourself you have to invest in your brand and it's a part of investment I think Okay, sir. So we have some questions. I'm opening the question to both of you. The next question is how can from Priyanka Priyadarshini Nanda, how can I have more followers or customers to improve my brand value of the products for long time? Yeah, over to you, Neil, sir. आप बताइए ना सर मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन है आपके लिए Can you repeat the question once again, please? Aniket? The question is how can I have more followers or customers to improve my brand value of the products for long time? Okay, if you are going in a technical side, if you want to increase the number of followers or whatever your followers will come down when they will get some contents or when they will get some value addition when they will be coming to your channel or to your groups or whatever you are promoting the platform. Till the time they are not getting any value additions, they will never be coming down to. Then after it, once they are getting the value additions, then they will start interacting with you. This is what non-technical side of the things. But technical side of the things, if I am exactly knowing what you know and I am giving you that thing, then you will obviously come to me. Like प्यासे हुए अगर पानी पिला पानी दिखाओगे तो वो भाग के आपके पास आ जाएगा. So that is what we used to do in using the technology. We used to get a dump from the social media or the other tracking tools,
and we start delivering what actually you are searching. Like suppose in Google you'll find, suppose you'll start searching NSC or BSc 3-4 times, or you'll start saying in your Android phone NSC, or discussing with 3-4 persons, say just NSC, BSc, Bombay Stock Exchange. After some minutes, you'll get in your Gmail ID some tips or tricks from BSc or NSC. That's what Google is doing. The same thing we used to do it. From for business side, when for the digital marketing or business side, I hope Neil will be the right person to say it, sir. Obviously, he had said it. The more you are giving the contents, if you are giving value additions, obviously people will start connecting to you and start following you. Yes. Thank One you. thing that you all need to understand, it's a long-term game. Yeah. It's a long-term game. No one has become good, या फिर like rich, या फिर like किसी के 1 लाख या फिर 10 लाख followers overnight नहीं बढ़े. It's a long-term game. ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा content डालना पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, because trust सभी बोलता है, because mutual funds जैसा कहते हैं ना, the more you invest in a long-term game, the more आपका money increase होता है. तो सी अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूँ, अगर आपको अच्छा फॉलोअर्स बढ़ाना है या फिर लाइक क्लाइंट्स का चाहिए, अगर सी आपको यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अभी मैं जब कंसिस्टेंट का मतलब ये बोलता हूँ, इवन दो आई एम नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज बहुत सारा हमारा कंपनी वर्क होता है, मतलब 2 से 3 कंपनीज वी आर हैंडलिंग. सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, जहाँ पे आपको डेली का डेली सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ता है. बिकॉज सी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, परीक्षा लेते हैं कॉलेज में या फिर लाइक भगवान परीक्षा लेते हैं, तो वैसे ही सोशल मीडिया चैनल्स आपकी परीक्षा लेगा या फिर लाइक एग्जाम लेगा. एग्जाम किसके टर्म्स में लेगा, वो देखेगा कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं. कंसिस्टेंट मतलब आप 2 दिन में एक बार पोस्ट कर रहे हो, तो आप 2 दिन में एक ही बार पोस्ट करो. ऐसा मत करो कभी 2 दिन में एक बार कर दिया, 1 दिन में एक बार कर दिया. 2 दिन में एक बार मतलब 2 दिन में एक बार, 1 दिन में 3 बार मतलब 1 दिन में 3 ही बार. एंड दिस इज कंसिस्टेंट फॉर लाइक नेक्स्ट 6 to 10 months या लाइक मे बी फॉर अ ईयर. आपको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना ही करना है. अगर आप 10 बजे पोस्ट कर रहे हो तो आपको 10 बजे ही पोस्ट करना है. ठीक है, जहाँ पे आपका फॉलोअर सबसे ज्यादा एक्टिव है. तीसरा चीज, आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट. यू डोंट हैव टू कॉपी समवन एल्स कंटेंट. आपको खुद का कंटेंट बनाना है. जब आप खुद का कंटेंट बनाते हो, पीपल विल स्टार्ट टू फॉलो यू एंड पीपल विल स्टार्ट टू ट्रस्ट यू. सो दिस आर द 3 फैक्टर्स. एंड कमिंग टू क्लाइंट्स, कहाँ से जनरेट करना है, मैंने तो आपको बताया, लाइक meetup.com पे जाइए, न्यूज़पेपर्स में देखिए, आप इंटर्न चैनल पे जाइए, टेलीविजन पे देखिए, बिकॉज दिस आर दी हाई पार्टी क्लाइंट्स, जहाँ से आप क्लाइंट्स गेन कर सकते हो. एंड अगर आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप, दिस इज अ लॉन्ग टर्म, नथिंग इज गोइंग टू हैपन within a day or like month or like 2 months. आपको you have to be consistent. You have to accept this hard truth कि आने वाले 6 months तक आपके followers एक भी increase नहीं होंगे. आपको ये मान के content produce करना है, तभी you can win this game. Thank you, sir. Our next question is from Vishwajit Pradhan. All good? He's asking, hello? Hello? Yeah, carry on. Yes, Okay. yes, tell me. Sir, as now Instagram launched its monetization plan for IGTV video, will it be helpful or useful to monetize our content having less than 1K followers? I'm not the right person, and Neil is the right person for it. See, monetization का तो आपको मैं बोलता हूँ ना, don't focus on monetization part. I request you कि don't focus on monetization part. At least till the time when you have minimum of 50,000 followers, 50,000 subscribers. ठीक है, minimum तब तक तो आप बिल्कुल ध्यान ही मत दो. Even तो पैसा आ रहा है फिर भी आप accept मत करो. Because you don't have to sound salesy to your followers, to your subscribers. आपको बेचना नहीं है आपके सब्सक्राइबर्स को. अगर आप बेचना स्टार्ट कर दोगे, आप मुझे बताओ, अभी तो 30 लोग हैं, मतलब 39 पीपल में से बस 9 लोग गए हैं इस सेशन के दौरान. तो आप ये अज्यूम करो कि अगर मैं स्टार्टिंग से आपको सेल करना स्टार्ट कर दो, एंड इफ आई डोंट गिव द वैल्यू टू यू, व्हाट विल हैपन? यू विल स्टार्ट टू गो, आप मुझे अनफॉलो करना स्टार्ट कर दोगे. तो डोंट बी सेल्सी या फिर लाइक अभी मत करो मोनेटाइजेशन में. यस, आई नो कि वहां से पैसा आ सकता है, बट एटलीस्ट बी पेशेंट, जहाँ पे आप मिनिमम 50,000 तक का मार्क रखो. उसके बाद जिस टर्म्स में आएगा, आपका एक्सपोनेंशियल अमाउंट में आपको पैसा आएगा. उसके बाद अभी जो अगर कोई आपको 1000 रुपीज या फिर 500 रुपीज देता है, आगे जाके वही सेम आपके 50,000 जब सब्सक्राइबर्स होंगे या फिर 50,000 फॉलोअर्स होंगे, मे बी अ गुड ब्रांड हु विल बी पेइंग इन lakhs of money, they will approach you. So don't focus on the monetization part right now at this point of time. At least like be consistent, 2,000 followers or like subscribers. I hope Biswajit, Okay, I was able to understand, like answer your question. Sir, our next question is from Shivangi.
I think you have already answered this question, but you can go ahead. How can I drive digital traffic to my Instagram ID? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ पर है ये? Okay, Shivangi is asking how can I drive digital traffic to my Instagram ID? See, you just build up the content. आपको मैं बोलता हूँ अभी ट्रैफिक कैसे जनरेशन होता है, ठीक है? ट्रैफिक के 3 से 4 अलग अलग सोर्सेस है. सबसे पहला हो गया होम मतलब जहाँ पे आप इंस्टाग्राम का लोग देखते हैं आपका एंड आपके फॉलोअर्स वहाँ पे जाते हैं और ट्रैफिक जनरेट होता है. दूसरा हो गया आपका सर्च एक्सप्लोर पेज. सर्च एक्सप्लोर पेज पे आप आते ही कब हो? अभी आपको ये ट्रिक मैं बोलता हूँ आपको यूज करना है. whenever you are posting like around 10 AM in the morning, 9:30 AM से आपको एंगेजमेंट करना स्टार्ट कर देना है. आपको क्या करना है ना, जो सर्च बार है ना, वो सर्च बार में आपको सर्च करना है जो भी टॉपिक पे आपको बात करते हैं. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फाइनेंस टॉपिक, फाइनेंस आप हैशटैग सर्च कीजिए और वो होता है ना टॉप हैशटैग्स एंड रीसेंट हैशटैग्स. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? तो अभी देखो मैं तो क्या करूंगा ना, यहाँ पे पहले सर्च करूंगा मैं फाइनेंस का टॉपिक, ठीक है? तो मैं जैसे ही फाइनेंस सर्च करता हूँ, अभी तो ये लोड हो रहा है. तो आपको क्या करना है, जो टैक्स का जो सेक्शन है ना, आपको इसमें आना है और यहाँ पे हैशटैग पे क्लिक करना है, ठीक है? आप जैसे ही क्लिक करते हो, अभी तो नेट स्लो है, मे बी आई डोंट नो ये होगा प्रैक्टिकल या नहीं, आइडिया नहीं मुझे. बस हम लोग और 5 सेकंड्स रुकते हैं, अगर होता है तो ठीक है. ओके, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको आएगा टॉप वाला सेक्शन, ठीक है? यहाँ पे आपको आएगा टॉप वाला सेक्शन और यहाँ पे आएगा आपको रीसेंट वाला सेक्शन. तो ये जो रीसेंट वाला सेक्शन जो है ना आपका, रीसेंट वाले सेक्शन में जाके आपको एंगेजमेंट स्टार्ट करना है इस अकाउंट्स के साथ फ्रॉम 9:30 AM. बिकॉज रीसेंट सेक्शन होता क्या है? रीसेंट सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन जहाँ पे रिसेंटली किसी ने कुछ कंटेंट पोस्ट किया है. रिसेंटली मतलब विद इन सेकंड्स, लाइक विद इन 2 सेकंड्स, विद इन 5 सेकंड्स. अब कोई 5 सेकंड्स पहले आप पोस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन अभी एक्टिव है इंस्टाग्राम पे. और जब उसके फोटो पे आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो वो पर्सन क्या करेगा, मेरे फोटो पे किसने लाइक किया वो देखता है. अगर ये नहीं होता है तो मे बी उसके फॉलोअर्स देखते हैं कि यार ये पर्सन कौन है जिसने कमेंट किया है. एंड कमेंट में आपको क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन पूछना है इन द कमेंट सेक्शन. तो होगा यूं कि व्हेनेवर यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस ना, ओके, व्हेनेवर यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, आगे उनके फॉलोअर्स आपका अकाउंट देखना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड व्हाट दे विल ट्राई टू सी इज, यार यस आई नो कि यार मेरा जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ ये तो कंटेंट बनाता ही है, बट जिसने कमेंट किया ये भी अच्छा कंटेंट बनाता है, लेट मी फॉलो हिम. सो दिस इज द अनदर सोर्स जहाँ पे आप कर सकते हो. बट यू हैव टू स्टार्ट एंगेजिंग फ्रॉम लाइक 9:30 AM टू लाइक 10 AM. एंड अराउंड 10 AM आप पोस्ट कीजिए, फ्रॉम लाइक 5 AM से लाइक 10:30 AM वापस से आप एंगेजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड बाकी हैशटैग, दिस इज द थर्ड सोर्स जहाँ से आपका ट्रैफिक होता है जनरेट. यूज प्रॉपर लाइक प्रॉपर हैशटैग्स. फोर्थ इज योर अदर ग्रुप्स, मे बी व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर. आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको ट्रैफिक जनरेट होगा. तो दिस आर दी ट्रैफिक सोर्सेस जहाँ से आपको ट्रैफिक आएगा. Okay, sir. Our next question is from Trina. She's asking, if I'm trying to build an educational blog, how should I start with it? Like you mentioned about weekly live sessions and everything. Is it feasible for an educational blog? त्रिना, आपको मैं कुछ सजेशंस करता हूँ. जस्ट फॉलो द रोड मैप फॉर लाइक नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड आप बहुत मैसिवली ग्रो कर सकते हो. बहुत की पॉइंट्स आपको बोलता हूँ मैं. सबसे पहले जितने भी आपके एजुकेशन, जो भी आपका एजुकेशन फील्ड है, जो चूज करोगे, मे बी फाइनेंस, मार्केटिंग, व्हाटएवर योर द इंडस्ट्रीज, वो तो आपको अच्छे से पता होगा. ट्राई टू अप्रोच द इन्फ्लुएंसर्स जिसके पास 1500 फॉलोअर्स है, जो कि एक स्पीकर सेशंस देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं. ट्राई टू इनवाइट देम विद योर शो, जहाँ पे लाइक टॉक विद रीना ऐसा कुछ शो बना सकते हो. एंड ट्राई टू इनवाइट दिस पीपल इन शो. बिकॉज होता क्या कि इनके फॉलोअर्स आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे. पहला तो अप्रोच ये. दूसरा अप्रोच,
आपको जो यूज करना है वो है कि लाइक यू स्टार्ट पुटिंग आउट मोर वैल्यूएबल कंटेंट इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे आपके जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है या फिर कॉलेज गोइंग, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, तो मे बी फॉर एग्जांपल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट एजुकेशनल कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो आप इंस्टाग्राम पे एंड ब्लॉग्स इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर सकते हो. मे बी डोंट राइट द ब्लॉग्स ऑन द वेबसाइट बिकॉज ट्रैफिक जनरेशन करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ पे एसईओ एंड ऑल बहुत बड़ा प्रोसीजर है. उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स ऑन लाइक quora.com और लाइक medium.com बिकॉज सी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, बट एसईओ की बात करता हूं तो आपको ट्रैफिक लेके आना पड़ता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे. तो आप क्या करो, मैक्सिमम फोकस यू फोकस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड यू डाइवर्ट द ट्रैफिक टू द वेबसाइट. ये आप कर सकते हो. तीसरा जो आपको करना है ना, ये जो कोर्सेस है जूम पे कीजिए ताकि ये रिकॉर्डेड, और जूम पे ऑप्शन ना कि यहाँ पे मोड में आके आप लाइव ऑन यूट्यूब कर सकते हो, लाइव ऑन फेसबुक कर सकते हो. ये आप कीजिए. ट्राई टू अप्रोच द इन्फ्लुएंसर्स एंड ट्राई टू हैव 1-to-1 सेशंस विद देम. ट्राई टू डू सम मीटअप्स. तो फॉर एग्जांपल मैं मेरा केस स्टडी शोकेस करता हूँ. तो मैंने क्या किया था, मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज स्टार्टअप एक्सेलरेटर समिट, जहाँ पे स्टार्टअप यात्रा वाज आल्सो वन ऑफ आवर आउटरीच पार्टनर. अब इसमें हुआ क्या था इस इवेंट में, ये देखिए यहाँ पे 349 सब्सक्राइबर्स है. ठीक है, अगर आप वीडियो व्यूज देखोगे 3.8 है. ये कैसे किया मैंने, ये तो मैं पहले भी कर सकता था कि बट अभी क्या था, वो रोज का रोज कंटेंट डालना पड़ता था. बट मैंने क्या किया कि मेरे पास पहले 85 सब्सक्राइबर्स थे. ये चैनल का नाम था पहले तो डिजिटल नील था, बट हमने चेंज करके स्टार्टअप एक्सेलरेटर हब रखा. मैंने क्या किया, पुणे के जो भी जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क था सबको मैंने इनवाइट किया फॉर सम सेशंस वर्कशॉप्स. और मैंने क्या किया कि मैंने बताया सब पूरे मार्केट में दिया, पूरे मार्केट में कि गाइस आई एम डूइंग अ वेरी बिग इवेंट. और ये पूरा न्यूज़ पुणे में मतलब हमने स्प्रेड करना स्टार्ट आउट किया बिकॉज सब इन्फ्लुएंसर्स पुणे से ही थे. तो मेरा फायदा क्या हो गया कि मेरा जो नाम है ऑलमोस्ट बहुत सारे 60% से 50% जो एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम पुणे इनके पास चला गया बाय शेयरिंग, बिकॉज ये इवेंट था फ्री ऑफ कॉस्ट. ये इवेंट था फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो आप कर सकते हो. और इसमें क्या है ना, मार्केटिंग के लिए तो आपका मार्केटिंग करेंगे, जो स्पीकर्स है वो आपका मार्केटिंग करेंगे. आपको बस एक प्यारा सा पोस्टर बनाना है एंड यू जस्ट नीड टू ब्रिंग ऑल द स्पीकर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म. सी प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू द स्पीकर्स जहाँ से या फिर लाइक इन्फ्लुएंसर्स या फिर लाइक बिजनेस पीपल is one of the ways जहाँ पे आप इवेंट कर सकते हो, is one of the ways to grow exponentially. तो त्रिना अभी के लिए तो आप ये स्टार्ट कर दो और डेली 3 पोस्टर्स और 7 से 8 स्टोरीज करना स्टार्ट कर दो फॉर नेक्स्ट 6 to 7 months. Sir, Any more questions? there is another question from cheapest traveler, Ambika. Hi sir, what percentage of our income should we use in paid promotion? Hello. हाँ बताइए. Hello. देखो मैं आपको, हाँ आवाज आ रहा है मेरे से बिल्कुल. Just type yes in the comment section if you my voice is crystal clear and audible to all of you. Just type yes in the comment section. Awesome. Okay, तो आपका कितना पैसा देना, at least spend 30% or else 20% on the paid ads, because पैसा जब डालते हैं तभी पैसा बनता है. अभी मैं रिसेंटली बोलता हूँ, मैंने सोशल मीडिया मास्टर क्लास किया जहाँ पे अराउंड वी हैड जनरेटेड क्लोज टू 30,000 rupees just for my 10 hours talk. Every hours I was getting paid 3,000 rupees. प्लस इसमें से मुझे कुछ क्लाइंट मिलेंगे फॉर द वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ. मेरे लेवल 2 कोर्स के लिए और 5-6 लोग एनरोल करेंगे इसमें. ओवरऑल द रेवेन्यू गोज टू लाइक 1 लाख रुपीज. बट मैंने कितना स्पेंड किया आपको मैं ये बोलता हूँ, मैंने अराउंड स्पेंड किया 6,000 रुपीज ऑन द पेड एड्स. मैंने 6,000 रुपीज पेड किया और मुझे वहां से 150 प्लस लीड्स मिले और वो 150 लीड्स को हमने कन्वर्ट किया फॉर द वर्कशॉप. और उसमें से अराउंड आप मान के चल सकते हो कि 60 to 70 people got converted for the workshop and still people are inquiring right now too. And ये भी हमने किया within 3 to 4 days with proper calling and all, जहाँ पे मैं 3 दिन सबको बैठ के कॉल किया. So at least spend 300 रुपए पर डे के बेसिस पे तो आप स्पेंड कर सकते हो. ठीक है, मिनिमम आप 300 रुपए पर डे का बजट रखें स्पेंड करने के लिए. और मिनिमम जो कैंपेन है 3 या 4 दिन के लिए चलने दीजिए. दैट इज रिकमेंडेशन बिकॉज कैंपेन सी जैसा एक बेबी ग्रो होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, हम जैसा बचपन से ग्रो होते हुए हमारे पेरेंट्स ने हमको छोटा छोटा मतलब हर चीज स्मॉल स्टेप्स में सिखाया. तो सेम गोज विद द फेसबुक एज वेल एज द इंस्टाग्राम थिंग. जब भी आप एड रन करो तो मिनिमम 3 दिन रखिए ताकि वो जो एड है थोड़ा सा और अच्छा ग्रो होगा आपका. ऑल गुड? Yes sir, this is our last And I think question.
Hello. This is from Gauranga. हाँ बताइए. Which is better and gives quick हाँ. result, branding or direct marketing? आपको क्या लगता है? Guys, I want all of you to answer. What do you think? क्या लगता है? Branding या direct marketing? Just type. Please vote. Branding या direct marketing? Branding or direct marketing? Just type in the comment section. Branding or direct marketing? Just type branding for branding, or else just type B, or else just type D for direct marketing. I think Gauranga, आपको आंसर मिल गया होगा. Everyone is typing branding. See, I want to tell you a story. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3 मिनट ही लूँगा आपका. When I was in first year, there was some group of people who were doing some network marketing stuff. उन्होंने बताया कि नील एक बार हम लोग I was in the उन्होंने बताया कि ये इवेंट अटेंड करो, एंड इवेंट में they try to tell कि आपको और 2 लोग जोड़ना है and you can earn more money. And while I was there, मैंने बोला कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है because I was focusing on some other stuff. ठीक है, while I was focusing on other stuff because तब मुझे था मेन कि मुझे सीखना है. ब्रांडिंग मतलब यही है कि लाइक यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू ब्रांड योरसेल्फ. जब आप बार सीखते हो और किसी को सिखाते हो, आपका नाम बनना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में. अभी फॉर एग्जांपल गौरंग, आपको मैं ये बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ अभी ये वाला जो सेशन था 30 मिनट्स या 40 मिनट्स व्हाटएवर आई स्पोक, इट वाज अ कंप्लीट ब्रांडिंग के पार्ट से मैं यहाँ पे आया. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग के पार्ट से आता, इफ आई आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग छोड़ के जाते? इफ आई ट्राई टू सेल यू समथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग 20 मिनट्स, आप बताओ मुझे. नो वन वांट्स टू गेट सोल्ड. ये आप ध्यान में रखिए. आप आपका ब्रांड इस लेवल पे रखिए कि लाइक आपका नाम सुनते पीपल विल पे फॉर द मनी. सो ब्रांडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्ट मार्केटिंग. सो बिल्ड योर ब्रांड फर्स्ट, ठीक है, एंड द मनी विल फॉलो. Thank you, sir. So this is the end of our Q&A session. If any of you would like to add anything to it, you're welcome. Okay, thank you. It was really a nice session. Thank you so very Aniket. much, guys. Thank you so very much for attending. I hope you really like the session. Okay, just Yeah, type awesome in the comments. You really like the session. Just type awesome in the comment section, guys. I want to see how many people really like the session. Yeah, just type awesome in the comment section. This is a really a nice really session. like Neil. If you have doubts, go. Yeah, Neil, carry on. Please carry on. Yeah. If you have any more questions, आप मुझसे Instagram पे connect कर सकते हो. मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा active रहता हूँ. ठीक है. Whatever doubts you have, just connect with me on Instagram. आप आपके queries पूछ सकते हो. आपको business related कुछ queries है या फिर like marketing related है, तो आप प्रियदर्शी सर and